My precious friend, मेरे अनमोल मित्रों, God has made plans for you. परमेश्वर ने आपके लिए योजनाएं बनाई हैं। Even before the foundation of the world, संसार की नींव रचे जाने के पहले ही He has decided what you should have उसने निश्चित कर दिया है कि आपके पास क्या होना चाहिए and who you should become और आपको क्या बनना है and what blessing should come to those who are dependent on you और जो आप पर निर्भर है उनके ऊपर कौन सी आशीषें हैं जो आनी है and how you should be a blessing to humanity. और कैसे आप मानवता के लिए आशीष बन सकते हैं। So enter into this month with all the joy that the Lord is in control of your life. इसलिए इस माह में आनंद के साथ प्रवेश करें क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन का नियंत्रण करता है। He will perfect everything concerning you. आपके विषय हर एक बातों को वो आपके लिए पूरा करेगा। This month's promise is found in 1 Corinthians 2 and verse 9. इस माह के लिए प्रतिज्ञा वचन हमें मिलता है पहला कुरिन्थी अध्याय 2 वचन 9 में, The scripture says, जहाँ शास्त्र में यूं लिखा है what no eye has seen, कि जो कुछ आँख ने नहीं देखा what no ear has heard, और जिसे कान ने नहीं सुना and what no human mind has conceived, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, the things God has prepared for those who love Him. परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए उन्हें ही तैयार की हैं। God has prepared everything for you, which is beyond human understanding. परमेश्वर ने आपके लिए सारी चीजें तैयार की हैं जो समझ से परे हैं। That is the heart of my Lord Jesus for you and for me. मेरे और आपके लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह की मंशा यही है। He says, I will make all things new. वो कहता है मैं सब कुछ नया कर दूंगा। All things shall pass away. पुरानी बातें जो हैं वो जाती रहेंगी। And the scripture says, if a person is in Christ Jesus, he's a new creation. और शास्त्र कहता है अगर कोई व्यक्ति बस यीशु में है तो वो नई सृष्टि है। She becomes a new creation. वो महिला जो है एक नई सृष्टि है। Our Lord Jesus Christ is a person who makes everything new. हमारा प्रभु यीशु मसीह हर एक चीजों को नया करने वाला व्यक्ति है। Nothing is old in his dictionary. और उसके शब्दकोश में कुछ भी पुराना नहीं है। He does not do the things which are of old nature. वो पुराने स्वभाव के कोई भी कार्य नहीं करता है। He makes everything new, new, new. वो सब कुछ नया नया और नया करता जाता है। So even in your life, everything is going to be made new by the Lord Jesus Christ. इसलिए आपके जीवन में भी यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ नया हो जाएगा। Believe it ये विश्वास करें and receive it in Jesus' name. और यीशु के नाम में आप उसे ग्रहण करें। In the scripture, शास्त्र में the Bible says in Ephesians 3:20 बाइबल इफिसी 3 और उसके वचन 20 में यूं कहता है that the Lord does everything exceedingly much more than what you have asked, much more than what you have thought, much more than what you have desired. कि परमेश्वर जो है ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती से ज्यादा हमारी समझ से कहीं अधिक कार्य Everything कर is सकता है। beyond human levels, सब कुछ जो है मानवीय सीमा से बाहर है, beyond understanding. हमारी समझ से वो परे है। In the Bible, we see a woman suffering for 12 long years with an issue of blood. हम देखते हैं बाइबल में एक महिला थी जो 12 से अधिक वर्षों तक लहू बहने के रोग से She पीड़ित just थी। touched the hem of the garment of Jesus. उसने केवल यीशु मसीह के अंगरखे के छोर को She छुआ। had touched the physicians, all types of physicians, and lost all her money. उसने हर प्रकार के हकीमों से अपना इलाज करवा कर सारा पैसा गवा दिया था, Nobody could bring healing to her. लेकिन उससे किसी से भी चंगाई न मिली। 12 years of issue of blood. 12 वर्षों तक लहू के बहने का यह जो रोग था उसके साथ, He must have become so weak, वो उसके कारण वो बहुत कमजोर हो गई होगी। cast away by everybody. हर एक ने उसका तिरस्कार कर दिया होगा। Could not enjoy a peaceful family life. वो एक शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन का आनंद नहीं ले पा रही थी। But when she touched the hem of the garment of Jesus, लेकिन जब उसने यीशु के अंगरखे के छोर को छुआ, she did not have to pay a single penny. उसे एक पैसा भी चुकाना नहीं पड़ा। The power from the Lord Jesus flowed into her. यीशु से
सामर्थ जो है उसके अंदर में बहती चली गई Immediately the issue of blood stopped. और तत्काल ही लहू का बहना जो है वो रुक गया। Not only that, इतना ही नहीं, but Jesus made her a servant of God. यीशु ने उसको परमेश्वर की एक सेविका भी बनाया। He made her to testify before all the crowds of people as to how she received healing through Jesus. और पूरे लोगों की भीड़ के सामने उससे ये गवाही दिलवाई कि कैसे उसने यीशु के द्वारा से अपनी चंगाई को पाया था। And the Lord filled her with His peace. और प्रभु ने उसे अपनी शांति से भर दिया। What a great joy. कैसा महान आनंद। Even today, my friends, आज भी मेरे प्रिय मित्रों, that's the vision God has given me. परमेश्वर ने मुझे वही दर्शन दिया है Not just to receive healing कि हम केवल चंगाई को न पाएं or miracles या एक चमत्कार को। when you call the prayer tower. जब आप प्रेयर टावर में फोन करते हैं, God said we should teach you how to be transformed to testify about Jesus to others and bring miracles to them. परमेश्वर ने कहा हम आपको सिखाएं कि आप कैसे ऐसा बदल जाएं कि आप अपने जीवन की चमत्कार की गवाही दूसरों को दें। That's why we have the partners training program. और इसलिए हमने पार्टनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है। You too can become like this woman. आप भी इस महिला के समान बन सकते हैं। Much more exceedingly God wants to lift you up. परमेश्वर कहीं ज्यादा आपको ऊपर उठाना चाहता है। Not just to receive a miracle, इतना ही नहीं कि आप एक चमत्कार पाएं, but to bring miracles to others in the name of Jesus. लेकिन यीशु मसीह के नाम में आप दूसरों के लिए चमत्कार लाएं। You can also pray through your home computer system for others through the Jesus Calls Prayer Tower. और आप अपने घर के जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके द्वारा ही जीसस कॉल्स के द्वारा औरों के लिए प्रार्थना कर If सकते you हैं। want to pray, we will link the Jesus Call system with your system and train you to pray. अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं औरों के लिए तो हम आपके सिस्टम को जीसस कॉल्स के सिस्टम से जोड़ देंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे प्रार्थना करें। Call this number that you are seeing now and you will get connected. स्क्रीन पर दिए गए नंबर को आप अभी फोन करें और आप हमसे जुड़ जाएंगे God will do exceeding wonders by healing you. और आपको चंगाई के साथ परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर Anything is possible with Jesus. यीशु के साथ कुछ भी संभव है। Now put your hands upon your chest or the place where you have the sickness. और अब आपके पास जहाँ भी रोग है वहाँ अन्यथा अपने छाती पर अपने हाथ को रखें I'm going to pray for you. और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus, प्रभु यीशु, by your nail-pierced hands, अपने कीलों से छिदे हाथों से, your hands which has the wounds, वो हाथ जिनमें आपके वो घाव हैं, heal your children. अपने संतानों को चंगा करें। You wicked disease, stop working in their bodies right now in Jesus' name. तुम दुष्ट बीमारियों इसी समय यीशु के नाम में उनके शरीर में काम करना बंद कर दो। Your weaknesses leave in Jesus' name. हर एक कमजोरी यीशु के नाम में उनके शरीर को छोड़ दो And the organs which are not functioning begin to function in Jesus' और name. जो अंग कार्य नहीं कर रहे हैं इसी समय यीशु के नाम में फिर से कार्य करना शुरू करें। Those who do not have a child, conceive now in Jesus' name. वे जिनके कोई संतान नहीं है यीशु के नाम में अभी गर्भ धारण करने पाए। Martha, मार्था, Martha, मार्था, receive a child in your womb in Jesus' name. यीशु के नाम में अपने गर्भ में एक संतान को तुम प्राप्त करो। Vanaja, वनजा, you're also suffering with the issue of blood. आपको भी लहू के बहने का रोग है, Be healed चंगी हो जाओ right now in Jesus' name. इसी समय यीशु के नाम में। Lord, touch and heal everyone who is suffering with the issue of blood. प्रभु जी हर एक जिन्हें लहू के बहने का रोग है आप उन्हें छूकर चंगाई दे, Heal them, Lord. उन्हें चंगा करे प्रभु। Some children are unable to go to school even because of this. और इसके कारण से कुछ जो बच्चे हैं वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, You are delivering them, आप उन्हें छुटकारा दे रहे हैं removing the weakness and the darkness, Lord. और हर एक कमजोरी और अंधकार को आप दूर कर रहे हैं प्रभु जी। Every breathing disease, हर एक सांस की समस्या और बीमारी, infections, हर एक इन्फेक्शन be healed in Jesus' name. यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। Let the stones come out. स्टोन्स जो है वो बाहर निकल आए। Chaco, चाको, be healed in Jesus' name. यीशु के नाम में चंगे हो जाइए। Let the stones dissolve right now. होने दे कि पत्थरी इसी समय घुल कर गायब हो जाए। Ravindra,
रविंद्र, God heals you right now. यीशु आपको अभी चंगा कर रहा है। Master, let the fever go. स्वामी, होने दें कि ज्वर जाता रहे Let thy children be healed in Jesus' name. और आपके संतान यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Rachna, रचना, Rachna, रचना, Jesus touched your eyes right now. यीशु ने तुम्हारी आंखों को अभी छू लिया है। Be healed in Jesus' name. यीशु के नाम में चंगी हो जाओ। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Arul Selvan, अरुल सेल्वम, God touched you right now. परमेश्वर ने अभी आपको छुआ है। The wisdom of God is upon you. परमेश्वर की बुद्धि आपके ऊपर है। Surely you shall prosper. निश्चय आप संपन्न होंगे। You will get through in the test that you have to face. जो टेस्ट आपको देना है उसमें आप अवश्य सफल होंगे And the Lord will help you. और प्रभु आपकी सहायता करेगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन, आमीन। Lord, lay your hands on everyone who has put their hand upon their chest. प्रभु जी, हर एक जिन्होंने अपने हाथों को सीने पर रखा है, आप उन पर अपना हाथ रखें। Or in the place where they have the या sickness. जहां उनके रोग है, जब उन्होंने वहां हाथ को रखा है। Thank you for healing them. धन्यवाद प्रभु चंगा करने के लिए, Thank you for delivering them. उन्हें छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, Thank you for creating new organs. उनके लिए नए अंग बनाने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। And also, my friends, साथ ही साथ मेरे प्रिय मित्रों, how a slave became a savior. कैसे एक दास जो था वो उद्धारकर्ता बन गया। Joseph was hated by his brothers यूसुफ जो था अपने भाइयों के द्वारा घृणा किया जाता था and thrown into the pit और उसे गड्ढे में डाल दिया गया था and sold as a slave. और दास के रूप में बेचा गया And there he was wrongfully convicted, और वहाँ गलत तरीके से उसके साथ न्याय हुआ thrown into prison. और उसे बंदीगृह में डाल दिया गया। What great shame. कैसी महान शर्म की बात। But the Bible says God was with him लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर उसके साथ था at the right time. और सही समय पर God lifted him up to rule the nation. परमेश्वर ने उसे ऐसा उठाया कि वो पूरे देश पर शासन करे। That's the grace God is going to give you from this moment. और इसी घड़ी से वही अनुग्रह परमेश्वर आपको देने जा रहा है। Today you are being oppressed, आज आप सताए जा रहे हैं, but God's wisdom is abounding. लेकिन परमेश्वर का ज्ञान He'll भरपूर have है। promotion after promotion. आपको एक के बाद एक प्रमोशन मिलेगा And He will lead you to govern your department, your institution, and even have a part in the nation's governance. और वो आपको ऐसा उठाएगा कि आप अपने डिपार्टमेंट में, अपनी संस्था में और यहाँ तक कि शासन में भी शासन के The अधिकारी hand of बनेंगे। God is coming upon you for that. उसके लिए परमेश्वर का हाथ आप पर आ रहा है। Alex, एलेक्स, the Holy Spirit is lifting you up. पवित्र आत्मा आपको उठा रहा है। He is honoring your innocence and integrity. आपके भोलेपन और आपकी ईमानदारी के लिए वो आपका आदर कर रहा है। Radhika, राधिका, the exams that you are writing is blessing and the Lord is establishing your future. आप जो परीक्षा लिख रही हो, प्रभु उसको आशीष दे रहा है और आपके भविष्य को स्थापित कर रहा है And placing you in positions of authority. और आपको अधिकार के पदों पर वो रख रहा है। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। And again the Bible says, और बाइबल ये भी कहती है, a man who was a persecutor became an apostle of God. एक व्यक्ति जो कि सताने वाला था लोगों को, वो परमेश्वर का प्रेरित बन गया। Saul, who was the persecutor, became Paul, the apostle of God, walking with God. शाऊल जो लोगों को सताने वाला था, वो परमेश्वर के साथ चलने वाला पौलुस प्रेरित बन गया। Galatians 1:13-16. गलाती 1:13 से 16 में, 1 Timothy 1:13. पहला तिमोथी 1:13 में, And a barren mother gave birth to a prophet. एक बांझ महिला ने, माता ने एक भविष्यवक्ता को जन्म दिया। Today you may say, I am barren, हो सकता है आज आप कहते हो कि मैं बांझ हूँ or I have lost everything. या मैंने सब कुछ खो दिया है। God is making you bring forth children who are going to be prophets of God. लेकिन परमेश्वर आपको ऐसा कर रहा है कि आप परमेश्वर के भविष्यवक्ता बच्चों को जनेंगे। Luke 1:36-40. लुका 1:31 से लेकर के 40 के अनुसार। Today you may say, I am not able to help my children. शायद आप आज कहते हैं कि मैं अपने बच्चों की सहायता नहीं कर पा रहा, God's grace is coming to you लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आ रहा है to help you raise the children
to great heights and also to become prophets of God. ताकि आपके बच्चों के पालन पोषण में वो आपकी सहायता करे और उन्हें परमेश्वर के भविष्यवक्ता के रूप में आप बढ़ाएं। May God bless you with this blessing. परमेश्वर इस आशीष के साथ आपको आशीष दे। Here's a beautiful testimony देखिए एक सुंदर गवाही है यहाँ about how a child was blessed कि कैसे एक बालक को आशीषें मिली and how God gave a beautiful future. और परमेश्वर ने उसे एक खूबसूरत भविष्य दिया। Listen and be blessed. इसे सुने, देखें और आशीषित हो। मेरा नाम सुची है, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मेरी गवाही, मुझे ब्लड का बीमारी थी, रोग था मुझे, ब्लड का ब्लीडिंग था मुझे, मैक्स टू मैक्स 5 to 6 इयर्स था मुझे। बहुत ही मैंने स्ट्रगल किया उतने साल में, बहुत ही सारे मैंने मेडिसिन किया, डॉक्टरिंग किया, सब कुछ किया मैंने, पर नथिंग, सब मुझे साइड इफ़ेक्ट में बदलने लग गया, नो रिज़ल्ट था। मैंने बहुत स्ट्रगल किया मेरे स्टडीज़ के लिए। तो 10th में मैंने 54% स्कोर किया था। तो एक टाइम मेरी मम्मी प्रार्थना प्रेयर में बैठी थी, तो मेरी मम्मी ने जैसे ही बाइबल पढ़ रही थी तो प्रभु ने अगुवाई किया 12 वर्ष के जिसका लहू बह रहा था। तो मेरी मम्मी ने बोला कि प्रभु उसने तो तेरे कपड़े की छोर को छुआ था, मैं मेरी बेटी के लिए कहाँ से लेके आऊँ। वही क्वेश्चन प्रभु ने सच में टच किया। और जैसे परमेश्वर ने मेरी मम्मी को लीड किया बेथेस्दा में जाने के लिए, और वहीं डॉक्टर पॉल दिनाकर ब्रदर इवेंजलिस्ट सिस्टर का मीटिंग था, प्रेयर हीलिंग मीटिंग सर्विस था, और हम एक ही फेथ के साथ यहाँ से जाते, जस्ट वी वांट हीलिंग करके। तो हम जैसे ही जा रहे थे, जाने से पहले ही आई फील, मुझे महसूस हुआ कि मैं हील्ड हूँ करके। और जैसे मैं बेथेस्दा में एंटर की मैं, और जैसे डॉक्टर पॉल दिनाकर इवेंजलिस्ट सिस्टर ने मेरे ऊपर ली हैंड किया, एंड आई वाज फुल्ली कम्प्लीटली हील्ड। मुझे 7 इयर्स हो चुके हैं, आई एम फुली कम्प्लीटली हेल्ड, गुड हेल्थ के साथ। मेरी स्टडीज़ के टेस्टिमनी, तो जैसे मुझे हीलिंग मिला, जैसे आपने सुना था, मैं एक यंग पार्टनर हूँ। परमेश्वर का एक वचन, ना बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। सच में परमेश्वर के आत्मा ने मुझे स्ट्रेंथ दिया मुझे स्टडीज़ करने के लिए, और धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे कॉलेज में, मेरे ग्रेजुएशंस में, अब मेरे लास्ट मंथ में मेरा ग्रेजुएशन हो गया था बैंकिंग, बैचलर्स इंश्योरेंस में 99% के साथ परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। Like all praise and glory to God. My precious friend, मेरे अनमोल मित्रों, how beautifully God healed Suji, परमेश्वर ने कैसे खूबसूरत तरीके से सीजी को चंगा किया, lifted her up in her education, उसको उसके पढ़ाई में उन्नत किया, and has given her a good job. और आज उसे एक अच्छी नौकरी The दी। Lord will do it यहोवा आपके लिए यही करेगा, for you also. आपके लिए भी। Let me pray. मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। Father, bless the young people now. पिताजी, इस समय हर एक जवान को आप आशीष दें। Give them supernatural wisdom, आप उन्हें अलौकिक बुद्धि ज्ञान दें, knowledge, ज्ञान दें, and the ability to excel. और श्रेष्ठ होने की काबिलियत दें। During this month, 43 years ago, इसी माह में 43 वर्ष पूर्व you filled me with the Holy Spirit, आपने मुझे पवित्र आत्मा से भरा था, gave me stature in my body, और आपने मुझे कद काठी दी शरीर में, and degrees up to PhD, और डिग्रीज दी, यहाँ तक कि पीएचडी के बाद भी, and the anointing of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा का अभिषेक भी दिया, ability to administer, और प्रशासन की आपने क्षमता दी मुझे, and you have been with me to bless me. और आप मेरे साथ रहे कि आशीष दूं। You have been with me to confirm the prayer with signs, wonders, and miracles. और प्रार्थनाओं को चिन्ह, चमत्कार और आश्चर्य कर्मों के साथ इस दृढ़ कर सको। Do it for your children. और यही आप अपने बच्चों के लिए As you करें। built my family life, build their family life. जैसे आपने मेरे पारिवारिक जीवन को बनाया, इनके भी पारिवारिक जीवन को आप बनाए। Honor them, Lord, प्रभु इनका आदर करें and bless them. और उन्हें आशीष दें। In Jesus' name, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ, Amen. आमीन। My precious friend, मेरे अनमोल मित्रों, God will do exceedingly abundant things in your life this month. इस माह परमेश्वर आपके जीवन में भी बढ़ चढ़ करके अद्भुत कार्य करेंगे, You too can do exceedingly great things for God. और आप भी परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम कर सकते हैं। Stand with us to build 3 prayer towers which we are beginning construction this month. इस माह जिन 3 प्रार्थना भवनों का हम निर्माण शुरू कर रहे हैं, उसके लिए सहभागी बने। We have got the government approval for building. उन निर्माण के लिए हमने गवर्नमेंट से अप्रूवल प्राप्त कर लिया है।
We were waiting for it for several years. कई वर्षों तक हम इसके इंतजार में थे। One is the Hyderabad Prayer Tower. एक है हैदराबाद प्रार्थना भवन। I know you love the Hyderabad Prayer Tower. हम जानते हैं कि आपको हैदराबाद का प्रार्थना भवन पसंद है। We are going to build a huge building वहाँ पर हम एक बड़ी इमारत बनाने जा रहे हैं to offer prayers, ताकि वहाँ प्रार्थनाएं हो, training, ट्रेनिंग हो place for meetings, और वहाँ सभा के लिए स्थान and हो also for young people and little children to be trained. और छोटे बच्चों और जवानों को प्रशिक्षण दिया जाए। So stand with us to build this prayer tower. तो इन प्रार्थना भवनों के निर्माण के लिए हमारे साथ खड़े हों। And also the Tenkasi Prayer Tower, साथ ही तेनकाशी प्रार्थना भवन भी Nagarkoil Prayer Tower, और नागरकोइल प्रार्थना भवन we are going to start construction. हम वहाँ भी निर्माण शुरू कर रहे हैं। Pray for it and support it. उसके लिए प्रार्थना करें और उसमें सहयोग दें God will build your home. और परमेश्वर आपका घर बनाएंगे। Here's more information. इसके लिए और जानकारी इस तरह से है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रिय भाइयों व बहनों, यीशु बुलाता है। प्रार्थना भवन हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, तेनकासी और नागरकोइल में नई सुविधाओं में हम बनाने वाले हैं। इस प्रार्थना भवन निर्माण के लिए हम आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए आमंत्रित करते हैं। अगर आप प्रभु के घर का निर्माण करेंगे, प्रभु स्वयं आपके घर और परिवार का निर्माण करेंगे। प्रिय दर्शकों, यह सेवकाई लाखों लोगों के लिए आज तक आशीष का कारण रही है और आप भी इस आशीष में औरों के लिए एक माध्यम बन सकते हैं। और इसके लिए आप दिए गए QR कोड को स्कैन करें, अन्यथा आप अपने निकटतम यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन में जाकर अपने दान दे सकते हैं। आइए आशीष पाएं और आशीष का कारण बने।